up? So today we are going to start our new topic of straight lines, that is for exercise 10.3. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, और इससे भी एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में रहेगा ही रहेगा, या आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो द टॉप टुडेज टॉपिक इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन to various forms like normal form, slope intercept form and intercept form. तो there are so many forms जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था. तो उन सभी फॉर्म्स को में अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन को. तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. ध्यान से देखिएगा बेटा, देयर आर सम बेसिक फॉर्मूलाज एंड आई कैन टेल यू के हाउ वी कैन कन्वर्ट द जनरल इक्वेशन इनटू द वेरियस फॉर्म्स. तो द फर्स्ट वी कैन नो दैट द जनरल इक्वेशन of a line. General equation of a line is ax, so we can take it as capital AX plus by plus c is equals to 0. This is the general equation of a line. Okay, so first we can convert it into, the first one is slope intercept form. So what is slope intercept form? Slope intercept form is y is equals to mx plus c, right? This is the basic one. तो अब हमें क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखिए किस तरीके से करेंगे. तो वी नीड y एज अलोन. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं अगर, तो वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x क्या देगी बेटा, माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, राइट. तो हेयर यू कैन लुक एट द इक्वेशंस. इफ यू कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, देन m मस्ट बी माइनस ए बाई बी and C is capital C is y intercept here. So y intercept is minus C by B. Okay, so if you want to find the slope of a line or y intercept from a general equation, then this is the formula to find out the general equation, the slope of the equation and y intercept. Okay, so now that come to the second one is intercept form. So what is the intercept form? The intercept form is x by a plus y by b is equals to 1, and here a and b are the x intercept and y intercept. So you can convert the general equation into this form. So if we want to convert this equation in this form, then this is x by minus c by a plus y divided by minus c by b is equals to 1. देखिए कैसे किया बेटा, आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी और आपको क्या चाहिए 1. तो यू कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय माइनस सी. तो दिस इज ए बाय ए एक्स डिवाइड बाय माइनस सी, बी वाई डिवाइड बाय माइनस सी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे आप ए को डिवाइड में ले आएंगे और बी को भी डिवाइड में ले आएंगे, बिकॉज यू नीड टू मेक द इक्वेशन इन दिस फॉर्म. तो यहाँ पे आपका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1. तो नाउ यू कैन कंपेयर दिस टू इक्वेशन, देन यू विल गेट x intercept, that is a, is minus c by a, and y intercept b, that is minus c by b. So look at here, the y intercept in this equation and this is in this equation are same. Okay, तो आपका फॉर्मूला सेम ही रहेगा अगर आपको y intercept निकालना है तो बेटा. ठीक है, and if you want to find the x intercept, तो x intercept निकालने का फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं. तो now come to the third form is normal form. तो normal form क्या होता था बेटा, normal form is x cos theta plus y sin theta is equals to p, where p is the perpendicular distance from the origin to the straight line and theta is the angle made by the perpendicular to positive x-axis in anti-clockwise direction, right? तो अब हमारे को इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है. तो आई कैन राइट द डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, इसका आप वो भी देख सकते हैं, पर उसकी इतनी नीड नहीं है. तो द डायरेक्ट फॉर्मूला इज cos थीटा इज plus minus a divided by under root a square plus b square, and sin theta is plus minus b under root a square plus b square, and p is plus minus c divided by under root a square plus b square. Okay, but the main important thing is here, you can take p should be पॉजिटिव. तो आपको क्या करना है, सी का ऐसा साइन कंसीडर करना है जिससे कि आपका पी पॉजिटिव ही आए. ठीक है, तो जो आप सी का साइन कंसीडर करेंगे वही आपको ए और बी का भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी लाइन की इक्वेशन ठीक से रहेगी. ठीक है,
तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही स्टेप याद रखना है कि P मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज P इज अ डिस्टेंस. ओके, तो दीज थ्री फॉर्म्स वेयर वी कैन फाइंड आउट from general equation to the various forms. Okay, so these three forms we have to learn, and now the main important one is here. Look, if we consider two different lines, तो अगर हम दो different lines consider करते हैं like a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, right? So in class 10th we learned about if we have two pair of linear equations, then these two must maybe intersecting, maybe coincident, or maybe parallel, right? So if these two lines are parallel, so then we know that this is a1 by a2 is equals to b1 by b2 if lines are parallel. But if lines are perpendicular, so how we can find out the perpendicular criteria? So if these two lines are perpendicular, that means the slope of this line into slope of this line, m1 into m2 is equals to -1, as we learned in previous exercise. So that means m1 is, बेटा slope का formula क्या होता था? Yes, minus a by b. So this is minus a1 by b1 into minus a2 by b2 is equals to -1. तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका a1 a2 is equals to minus b1 b2, और you can write it as a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0. If a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0, then lines are perpendicular, and if their ratios are same, the lines are parallel. Okay, तो ये दोनों प्रोसेस हमने सीखने थे बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी लर्न कीजिएगा. ठीक है, तो now come to the next one, the distance formulas. Okay, तो the distance formula, the distance of a line from a given point. Okay, so if the equation of line is ax plus by plus c is equals to 0, and the given point is x1 comma y1. Okay, so then the distance d is mod ax1 plus mod by1 plus c divided by under root a square plus b square. Okay, इजी है. ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका ये. अब नाउ कम टू द लास्ट वन फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines. Okay, so if two lines are parallel, then the coefficients of x and y must be of the same multiple. ठीक है, दोनों सेम मल्टीपल में होंगे, like a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. These are the two different equations of a straight line, of two different straight lines, and these two lines are parallel. If these two lines are parallel, then the distance between these two lines is c1 minus c2 divided by under root a square plus b square. Okay, first you can convert a1 a2 as same. Okay, फिर वो a1 a2 को जब आप सेम मल्टीपल से सेम करेंगे तो उसको हम a कंसीडर कर लेंगे और दूसरे को b कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपके बहुत ही ईजी हैं. तो आई कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.3. तो 10.3 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेटा. तो 10.3 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, तो देखिए आपको इक्वेशन दी गई है, तो देयर आर 3, तो आई कैन टेक वन. तो द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 6x plus 3y minus 5 equals to 0. Okay, and you have to find out, first you can convert it into slope intercept form. तो slope intercept form क्या होती थी बेटा? y is equals to mx plus c, right? और m की वैल्यू क्या होती थी? that is minus a by b. और आपकी y intercept की वैल्यू क्या होती थी बेटा? that is minus c by b, right? तो you can put, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करिए. तो देखिए क्या हो जाएगा, -6 डिवाइड बाई 3, दिस इज -2. तो स्लोप आ गया आपका -2, एंड वाई इंटरसेप्ट में आप वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज माइनस ऑफ -5.
डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज 5/6। ओके, अब देखिए, एक तो ये तरीका हो गया जब आपने फॉर्मूले से किया। दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आपको इक्वेशन दी गई है बेटा इस तरीके से, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म। जैसे कि हमने पहले किया था कि आप y को अलोन कीजिए, तो इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दीजिए और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका x का कोफिशिएंट होगा वो बन जाएगा आपका स्लोप, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो बन जाएगा y इंटरसेप्ट। तो देखिए, दिस इज -2 एंड दिस इज 5/6। चलिए 5/6 नहीं, 5/3, b की वैल्यू 3, ठीक है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो देखिए, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरीके से आप इसके दोनों पार्ट्स कीजिएगा बेटा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिड्यूस करना है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, और आपको इक्वेशन दी है लाइक, इसका भी सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं बेटा। दैट इज 4x - 3y = 6। ओके, ये फॉर्म दी गई है आपको। अब देखते हैं। तो देखिए, ये आपके पास इक्वेशन है लाइन की। ए आपको पता है, बी आपको पता है, सी। आप हमेशा जनरल इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखिएगा, टेक राइट हैंड साइड एज 0, ठीक है। तो अब आपको निकालना है x/a + y/b = 1। दिस इज द स्लोप, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो मैंने आपको बताया था, एक तो फॉर्मूला था बेटा, दिस इज -c/a एंड b था आपका -c/b। तो देखिए, दिस इज माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाय 4 एंड दिस इज माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाय 3 माइनस का। तो दिस इज 3/2 एंड दिस इज -2, ठीक है। अब देखिए, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है आपको, तो आप कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसको इधर शिफ्ट कीजिए बेटा, तो 4x - 3y = 6। यू कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 6। दिस इज 4x/6 - 3y/6 = 1। तो यू कैन राइट इट एज, देखिए आपको पॉजिटिव साइन चाहिए बीच में, सेम इक्वेशन फॉर्म करिए जो आपकी फॉर्म की इक्वेशन है। ये हो गया आपका 3/2 और ये हो गया आपका -2। तो दिस इज x/3/2 + y/-2 = 1। तो देखिए सेम आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ बेटा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो बहुत ही ईजी रहेगा, और अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपना टाइम अगर आपको बचाना है तो फॉर्मूले आप जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है थर्ड, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तो दिस इक्वेशन इज लाइक दिस। आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है आपके पास -√3 और c की वैल्यू आपके पास 8। ओके, तो देखिए, cos θ = ±a/√a² + b²। Okay, so first we can find out the value of √a² + b², that is √1² + -√3² that is equals to 2, ठीक है। तो बस बेटा देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ±1/2 sin थीटा क्या हो जाएगा आपका, -√3/2 एंड cos थीटा आपका क्या, सॉरी p आपका क्या हो जाएगा, दिस इज +-8/2। तो देखिए, p की वैल्यू को आपको 2 रखना है, मीन्स पॉजिटिव रखना है, तो ऊपर वाला जो साइन आप वही लेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू आपकी रहेगी 1/2, sin थीटा की वैल्यू रहेगी आपकी -√3/2 और p की वैल्यू रहेगी आपकी 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4, राइट। जो फर्स्ट साइन है आपको पॉजिटिव रखना है उसको। तो पॉजिटिव रखने के लिए देखिए, सी की वैल्यू -8 होती है तो हम नीचे वाले साइन लेते सबके, ठीक है। तो यहाँ से अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 पर। देखिए, थीटा आपको सेम रखना है, तो -√3/2 कब आएगा, जैसे पाई माइनस π/3, दिस इज 2π/3। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी 2π/3 और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 2π/3, बिकॉज आपकी दोनों थीटा सेम होने चाहिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बेटा आप कैसे कर सकते हैं, देखिए वही मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो ये टेन थीटा में, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -√3, देखिए दिस डिवाइड बाय दिस, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो -√3 कब आता है बेटा, tan 2π/3 पे आता है ना, एंड थीटा मस्ट बी फ्रॉम 0 to 180 लेना है आपको, मीन्स 0 to π के बीच में, तो 2π/3।
अब आपको इक्वेशन लिखनी है इसकी इन दिस फॉर्म, तो दिस इज cos 2π/3x प्लस sin 2π/3y इज इक्वल्स टू 4. ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है, राइट? तो आपको दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन. आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे दी गई और पॉइंट्स का आपको वो निकालना. तो देखिएगा, तो आज मैं आपको सभी टाइप्स के जितने भी हमने टाइप किया सबके के क्वेश्चन करेंगे बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द गिवन लाइन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, from 12 into x plus 6 is equals to 5 into y minus 2. तो फर्स्ट यू कैन कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द जनरल फॉर्म. आपको जनरल फॉर्म में देगा नहीं, आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तो द गिवन लाइन, आपके पास गिवन लाइन कौन सी है बेटा? तो दिस इज 12x plus 72 5y minus 10. तो दैट इज 12x minus 5y plus 82 is equals to 0. तो दिस इज द जनरल इक्वेशन. So now you can find that D. So D is ax1 plus by1 plus c divided by under root a square plus b square. So now you can put the values here. So a is 12, x1 is -1, b is -5, c is y1 is 1 and c is 82 divided by under root 12 square plus -5 square 144 प्लस 25 169. तो ये हो जाएगा आपका 13 नीचे आ जाएगा बेटा. -12 -5 -17 और 18 में से 70 82 में से 17 गए तो दैट इज 65. ठीक है, 65. यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए. दिस इज 5. तो आपका डी हो गया 5 यूनिट्स. ठीक है, तो बेटा यूनिट्स में आंसर दीजिएगा हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस की कोई ना कोई तो यूनिट होगी ना. ठीक है, तो देखिए तो हो गया हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. अब देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए उसने बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 2 days क्लास. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फर्स्ट इक्वेशन दिया उसने 15x plus 8y minus 34 equals to 0 and second equation is 15x plus 8y plus 31 equals to 0. ठीक है बेटा, तो देखिए ये दोनों इक्वेशंस आपके पास. तो यहाँ पे आपको a1 देखिए सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है. अगर सेम नहीं होते हैं तो आप इसको सेम बनाएंगे पहले. ठीक है, चाहे आप मल्टीप्लाई करके बनाइए चाहे आप डिवाइड करके बनाइए, वो आपकी मर्जी है. बट यू मस्ट कन्वर्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इक्वल. ओके, तो उससे क्या होगा देखिए आपका c1 यहाँ पे हो गया -34 और c2 हो गया आपका 31. ओके, तो देखेंगे आपका d क्या हो जाता है बेटा? c1 माइनस c2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल्स टू 31 माइनस 31 माइनस 34 माइनस 31 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो ये तो बेटा आपका 17 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 65. ओके, तो 65/17 यूनिट्स. ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सारे फॉर्मूलाज. तो बेटा इसके कुछ क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको लास्ट जो भी हमारे अलग क्वेश्चंस हैं, जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो सॉल्व कराऊंगा. एंड प्लीज मेक नोट्स बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड इट इज यूज्ड इन क्लास 12th ऑल्सो. ओके, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.